Hello everyone, welcome to our initiative Legally Saral. We are continuing our trust series part 3. In part 2, we have discussed section 11, 12 and 13 of the Income Tax Act related to charitable and religious trust. Today, we will be discussing on section 13, subsection 7, read with section 115 BBC of the Income Tax Act, which states how much donation is too much donation, whether the anonymous donation is a legal donation, but whether what is the quantum on the anonymous donation if it is received beyond a certain limit. So friends, we will move ahead with section 13.7 read with 115 BBC of the Income Tax Act. So friends, let's start with section 13 subsection 1, which we have already discussed in our previous slides. So let's start again. 13.7, which states Section 11 and 12 not to be applied in certain cases of anonymous donation. For this, first of all, we have to understand the concept of anonymous donation. What does it mean? Anonymous donation means, for the purpose of this subsection, anonymous donation means any voluntary contribution where a person receiving such contribution does not maintain a record of the identity, indicating the name and the address of the person making such contribution and as such particulars as may be prescribed. It means any person who has given a donation to the charitable trust or educational institution or any religious trust but whose identity is not ascertainable. आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसका हमें नेम नहीं मालूम है, एड्रेस नहीं मालूम है, उसका पैन कार्ड हमारे पास नहीं है. वो आदमी जो डोनेशन देता है बट वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है या हम उससे आइडेंटिटी लेते नहीं है, उसको एनोनिमस डोनेशन कहते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द एनोनिमस डोनेशन. अब सेक्शन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है. नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 11 और 12 शैल ऑपरेट so as to exclude from the total income of the previous year of the person in the receipt thereof any amount of anonymous donation referred to in section 115 BBC on which tax is payable in accordance with the provisions of that section. इसका मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशंस की बात करी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंजॉय करती हैं, अगर उन इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन मिलती है, कौन सी डोनेशन? जो एनोनिमस डोनेशन है. एनोनिमस डोनेशन में देखा जिन डोनर्स की आइडेंटिटी असर्टेनेबल नहीं है, उन एनोनिमस डोनेशन को आपको टैक्स देना पड़ेगा. उनको 11 और 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. और उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा वो सेक्शन 115 बीबीसी में बताया गया. नाउ एनोनिमस डोनेशन कुछ सर्टेन अमाउंट तक आपको अलाउड है लेना. व्हाट इज दैट अमाउंट? वेयर the total income of a university or educational institution, hospital or any other institution referred in section 1023C or any other trust institution referred in section 11 includes by way of income any anonymous donation, the income tax payable shall be the aggregate of amount of income tax calculated at the rate of 30% on anonymous donation received in excess of higher of the following: 5% of the total donation or 1 lakh rupees. इसका मतलब आपका ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन मिली, वो डोनेशन आपकी एनोनिमस डोनेशन का क्वांटम उसमें मैक्सिमम 5% ऑफ द टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर इज अलाउड. इसके ऊपर कोई भी डोनेशन अगर आपको मिलती है, दैट डोनेशन विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें. अगर मेरे पास 10 लाख की डोनेशन आई, उसमें से 5 लाख की डोनेशन ऐसी डोनेशन है जिसमें मेरा डोनर की आइडेंटिटी है, तो वहां तो सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन आप एंजॉय कर सकते हैं एज पर देयर प्रोविजंस. लेकिन जो बैलेंस 5 लाख की डोनेशन है ऑन विच द आइडेंटिटी इज नॉट असर्टेनेबल, आपको मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउड है? 50,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर. तो जो बैलेंस 4 लाख रुपीज रह गया, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट व्हाट रेट? 30% ऑफ द इनकम टैक्स रेट. Next, the provisions of this subsection 1 shall not apply to the anonymous donation received by a religious trust. It means अगर आपका कोई मंदिर है, कोई मॉस्क है, कोई गुरुद्वारा है, एनी रिलीजियस ट्रस्ट है आपके पास, वहाँ पे आपने एक डोनेशन की एक बॉक्स बनाया होता है. डोनेशन बॉक्स में लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं. उस केस में आपको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को
वॉलंटरी डोनेशन जो मिलती है, जहाँ पे डोनर की आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है और जहाँ पॉसिबल भी नहीं है, वहाँ पर आपको सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन एंजॉय करने का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड और एस्टैब्लिश होली फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस अदर देन एनोनिमस डोनेशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट सच डोनेशन इज फॉर द यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल पर्पस और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन बाय सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। क्या कहना चाहता है सेक्शन? ये प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। अगेन एनोनिमस डोनेशन आपकी टैक्स 30% में नहीं होगी किन इंस्टीट्यूशन में? जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल दोनों पर्पसेस के लिए बनी है, और उसमें लेकिन वो डोनेशन काउंट नहीं होगी जो कॉर्पस की डोनेशन है, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें मिली है। देन डिटेल एनालिसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको डोनर की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए अगर आपके पास प्रोविजन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो एनोनिमस डोनेशन कहलाएगा। ये स्लाइड को भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगर आपके पास एनोनिमस डोनेशन 6 लाख आई है, अदर डोनेशन जिनकी आइडेंटिटी है आपके पास वो 3 लाख है, टोटल डोनेशन आपको 9 लाख मिली। ट्रस्ट ने अपनी इनकम 10 लाख कमाई, अब 5 लाख रुपीज आपने उसमें एक्सपेंस कर दिया आउट ऑफ 10 लाख रुपीज। नाउ योर एनोनिमस डोनेशन इज 6 लाख, दिस वन, एंड योर टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम द ट्रस्ट इज 8 लाख। ये कैसे आया? 3 लाख डोनेशन फ्रॉम दी आइडेंटिफाइबल पर्सन्स, 8-10 lakhs मेरी इनकम, 3 + 10 13 - 5 लाख मैंने एक्सपेंस कर दिया, 8 लाख इज माई इनकम। नाउ हम जैसे जानते हैं कि 15% से ऊपर आपको अप्लाई नहीं करोगे तो दैट विल बी टैक्स। सो नाउ इन केस ऑफ एनोनिमस डोनेशन 1 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज अलाउड टू यू। वो कैसे? 6 लाख का 5% हो गया 30,000 और 1 लाख विच इज हायर। So your anonymous donation 5 lakh rupees will be taxable at 30%, that is 1,50,000. The balance income है 9 lakh rupees, which will be taxable at the rate of normal slab rate applicable to the normal SSC. So in case आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 2,52,200. बट अगर आपकी ये anonymous donation किसी रिलीजियस ट्रस्ट को मिली है, मंदिर को मिली है, गुरुद्वारे को मिली है, मॉस्क को मिली है, तो उस केस में आपको नॉर्मल 11-12 के प्रोविजंस मिलेंगे। आपको उस केस में सेक्शन 11-12 की एग्जम्पशन मिलेगी एंड यू विल नॉट बी टैक्स्ड एट 30%. So we hope friends you have learned from this video, and we will wait for your feedback so that we can be more wise in explaining the law, and in decoding the law we will welcome your feedback. Thanks and have a good day.